Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Ahmed of your chemistry teacher. Today we will discuss that how to calculate the empirical formula of any substance or any given sample. In yesterday's video we had discussed about the steps which we use today in our calculation. I hope you had understand very clearly and remember these steps. So there is a calculation for the empirical formula. Example number 1 is 1.367 gram of a sample, that is an unknown compound. A sample containing carbon, hydrogen and oxygen was combusted in a stream of air to yield 3.00 gram of carbon dioxide and 1.460 gram of water. The molecular mass of a sample is 120 gram. The molecular mass of a sample is 120 gram. Calculate its empirical and molecular formula. So we have an unknown compound which is as a sample, and its mass is 1.367 gram. They are according to statement the sample when heated it burns to produce carbon dioxide and water. So first of all we have to write the data. According to statement, the mass of carbon dioxide given is 3.002 gram and mass of water is 1.640 gram. The molar mass or molecular mass of an sample is 120 gram, and now we have to calculate empirical and molecular formula. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कहाँ से बन रहे हैं? ये जो हमें अननोन सैंपल एक दिया जा रहा है, अगर इस अननोन सैंपल को हम हीट करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं. एंड सैंपल की क्वांटिटी है 1.367 ग्राम और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या बन रहा है? 3.002 ग्राम एंड 1.640 grams. So come towards the solution. Yesterday we have discussed there are 5 steps to calculate the empirical formula. Here is step number 1, which is that to determine elements present in a sample, present in a unknown compound. So which elements are present? These elements are carbon, hydrogen and oxygen. अभी हमें कहाँ से पता चला? If you understand the statement of sample example, which is saying that 1.367 gram of a sample containing carbon, hydrogen and oxygen, where from it describes through कि कहाँ से पता चला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है. वो ये बता रहा है कि जब इस अननोन सैंपल को हीटअप करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं. जब वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है हीटिंग पे, देन इट मीन्स दैट सैंपल कंटेन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर and oxygen in the form of both water and carbon dioxide. So when any substance burns, new compound, new substance form, that show how and which elements are present in that sample. Step number 1 कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं. these are the carbon, hydrogen and oxygen. Completed the first step. Now step number 2, to determine the mass of elements. जो एलिमेंट्स अननोन सैंपल में मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, और क्वांटिटी कहाँ से हम फाइंड करेंगे कि जो सैंपल के 1.367 ग्राम गिवन हैं उन 1.367 ग्राम में
कार्बन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है एंड ऑक्सीजन का मास कितना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, टू डिटरमाइन मास ऑफ एलिमेंट। कैसे, फार्मूला क्या है हमारे पास, द मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, एटम का 1 मोल का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट कार्बन का मास कर रहे हैं तो हमें पता है कि कार्बन इज़ प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हम कार्बन डाइऑक्साइड में से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि सैंपल को जब हम बर्न करने, हम सैंपल को जब हीटअप कर रहे हैं तो सैंपल में से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही हमें कार्बन मिल रहा है। अब हम कार्बन कैलकुलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में से। सो एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट मीन्स कार्बन divided by molar mass of substance in which carbon is present and multiply by given mass of substance which is given in this statement that when sample is burned the quantity of carbon dioxide produced, how much quantity of carbon dioxide produced, that is given in the data or question. So if you put the value mass of carbon हमें फाइंड करना है is equal to atomic mass of carbon divided by molar mass of carbon dioxide and multiply by given mass of carbon dioxide. So अगर हम डेटा में से वैल्यू फाइंड करेंगे तो कार्बन का मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44 ग्राम एंड मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ 3.002, 12 ग्राम divided by 44 gram multiplied by 3.002 is equal to 0.819 gram. It means 0.819 gram of carbon element is present in that sample. जो हमने कैलकुलेट किया है किस में से, कार्बन डाइऑक्साइड में से। नाउ इन दिस सेम मेथड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है। अब हाइड्रोजन हम किस में से कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सेम फार्मूला में जस्ट कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन हम पुट करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर एंड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ वाटर विच इज गिवन इन दी data or in same question statement. So mass of hydrogen is equal to 2 gram atomic mass of. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन का मास है हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, बट इफ़ यू सी इन वाटर देयर आर 2 हाइड्रोजन, और हम जो हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर रहे हैं that we are calculating from water molecule. So जो हम यहाँ पे atomic mass of hydrogen की जगह पे वैल्यू 2 ग्राम पुट कर रहे हैं, that is 2 ग्राम of 2 hydrogen atoms present in 1 water molecule. That's why we are using 2 ग्राम instead of 1 ग्राम of hydrogen, क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वाटर में तो 2 ग्राम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। So 2 gram divided by 18 gram which is molar mass of water and multiply by 1.640 gram, that is given mass of water, and that will be equals to 0.18 gram of hydrogen. तो हमने यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, मास ऑफ कार्बन फाइंड किया that is 0.819 gram and mass of hydrogen which is 0.18 gram. That second step is completed. Now we move towards the step number 3, that is to determine the percentage of element, the quantity of carbon present in sample in the form of carbon dioxide. Now we will find the percentage of that carbon element.
जो कार्बन का 0.819 ग्राम मास प्रेजेंट है सैंपल में, इसकी परसेंटेज कार्बन की कितनी बनेगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब देयर इज फार्मूला, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, जो हमने अभी सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड मल्टीप्लाई बाय 100. So then the mass of carbon, sorry, the percentage of carbon is equal to, ये हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, फार्मूला पुट कर रहे हैं कार्बन के लिए। द परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, द मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब मास कार्बन का हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 0.819 ग्राम, जो हमने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इज़ 1.367 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, which is equal to 59.9% of carbon. It means 0.9819 ग्राम की परसेंटेज क्या होगी, 59.9, and the percentage of hydrogen is equal to 0.18 gram divided by 1.367 gram and multiply by 100, which is equal to 13.16. Now we have calculated the percentage of carbon and hydrogen, but in second step oxygen is missing, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि एलिमेंट 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट सेकंड स्टेप में हमने कार्बन और हाइड्रोजन का तो मास फाइंड किया है, बट देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज बिकॉज oxygen present in both substance, carbon dioxide as well as in water. So we will find the percentage in third step. We will find the percentage of oxygen. किस में से हम कैलकुलेट करेंगे, 100% को माइनस करेंगे किसके साथ, कार्बन की, हाइड्रोजन के परसेंट के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज. अब कैसे, सी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्ट्रैक्टिंग द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम 100. हम 100% में से कार्बन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज हम माइनस करेंगे, जो आंसर मिलेगा that will be the percentage of oxygen element. How? Percentage of oxygen is equal to 100, that is the total percentage of sample, 100 minus 59.9, which is percentage of carbon, minus 13.16 percentage of hydrogen. अब अगर इन दोनों के परसेंटेज हम 100 में से माइनस करेंगे, देन our answer is 26.94% of oxygen element. तो अब यहाँ पे हमें परसेंटेज किसकी मिल गई, ऑक्सीजन की भी परसेंटेज मिल गई, हाइड्रोजन की भी मिल गई एंड कार्बन की भी परसेंटेज मिल गई. बट हमने मास ऑक्सीजन का इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में से हम कार्बन कैलकुलेट कर चुके हैं, वाटर में से हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन दोनों में प्रेजेंट है तो दोनों में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसलिए क्या करते हैं कि दोनों की परसेंटेज फाइंड करके 100 में से परसेंट दोनों की माइनस करके हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज़ वेरी सिंपल. सो नाउ स्टेप नंबर 4, that is to determine the mole ratio of elements. It is very simple now. The formula of mole ratio is mole ratio of element is equal to percentage of element divided by atomic mass. The percentage which we have calculated in step number 3 that will used in step number 4. तो यहाँ पे क्या है, mole ratio is equal to percentage of element divided by atomic mass. So first of all we have to calculate the percentage mole ratio of carbon. Mole ratio of carbon is equal to percentage of carbon divided by
atomic mass of carbon. The percentage of carbon is 59.9 divided by atomic mass of carbon is 12 which is equal to 5. मीन्स के हमें परसेंटेज को डिवाइड किया एटॉमिक मास के साथ तो हमें आंसर मिला 5. दैट इज़ दी मोल रेशियो ऑफ कार्बन. Mole ratio of hydrogen is equal to 13.16. That is the percentage of hydrogen divided by 1. Here we will use the atomic mass of only single hydrogen atom. क्योंकि स्टेप नंबर 2 में जो हमने 2 ग्राम यूज़ किया था that was the 2 atoms of hydrogen which are present in water molecule. अब हम सिर्फ सिंगल एटम की हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो सिंगल एटम का हम मास यूज़ करेंगे यहाँ पे. सो 13.16 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 13.16 मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन का मोल रेशियो में क्या मिलेगा कि 26.94 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. सो आंसर क्या होगा 1.68. दैट इज़ द मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन का मोल रेशियो है 5, हाइड्रोजन का मोल रेशियो है 13.16 एंड ऑक्सीजन का मोल रेशियो है 1.68. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप दैट इज टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोल रेशियो. How can we calculate the simplest mole ratio is equal to mole ratio of element divided by least mole ratio. Now अब हमें क्या करना है कि किसी भी एलिमेंट का जब मोल रेशियो हमें फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे. अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप नंबर 4 में कार्बन का मोल रेशियो है 5, हाइड्रोजन का मोल रेशियो है 13.16 और ऑक्सीजन का मोल रेशियो है जस्ट 1.68. अब इन तीनों वैल्यूज़ में से सबसे जो स्मॉलेस्ट रेशियो है मोल रेशियो वो किसका है, ऑक्सीजन का है. कितना है 1.68. अब ये जो 1.68 लीस्ट रेशियो है, लीस्ट मोल रेशियो है, दैट वी विल यूज़ इन स्टेप नंबर लास्ट. कहाँ पे, डिवीजन में, लीस्ट मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए हम उसी एलिमेंट के मोल रेशियो को डिवाइड करेंगे लीस्ट रेशियो जिस भी एलिमेंट का होगा उसी के साथ. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमें कैलकुलेट करना है कार्बन का सिंपलेस्ट मोल रेशियो. SMR मीन्स सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, फार्मूला हमें दिया गया है मोल रेशियो ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट. अब लीस्ट मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट जिस भी एलिमेंट का हो, इसलिए यहाँ पे हम कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट मेंशन नहीं करते. तो कार्बन का मोल रेशियो है 5 और लीस्ट वैल्यू कौन सी है 1.68. कितनी है 1.68. सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ कार्बन तो हमें मिला है 3. अब अगर हम हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट मोल रेशियो देखें तो हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट मोल रेशियो क्या होगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1.68. दैट इज दैट विल बी इक्वल्स टू 8. हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट मोल रेशियो हमें कितना मिला 8. अब ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो है वो कितना है 13.6 डिवाइडेड बाय, सॉरी here is a mistake simple, that is the simplest mole ratio of oxygen is 1.68. कितना है 1.68. तो हम यहाँ पे जो 13.6 ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे बाय मिस्टेक 13.6 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.68. उसको डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू 1.68 के साथ, तो ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट मोल रेशियो हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा. सॉरी यू हैव टू करेक्ट दीज वैल्यूज़ बट देयर सिंपलेस्ट मोल रेशियो इज़ 381. सो दैट इज़ द स्टेप नंबर 5. Now finally we have calculated the simplest mole ratio which is 3 ratio
8:1। अब जो हमने सिंपलेस्ट वन किया है 3:8:1। अब अगर हम इस वो वैल्यूज़ पुट करें इन एलिमेंट्स के लिए तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो देयर एम्पिरिकल फार्मूला विल बी C3H8O1 मीन्स के C3H8O, this is the empirical formula of that sample 3:8:1. This is the empirical formula, simplest form empirical formula of the sample which was given in statement. Now second part is how to calculate molecular formula of a substance. हमें empirical formula तो calculate कर लिया. Now we have to calculate the molecular formula, and there is formula for molecular formula is molecular formula calculate करने के लिए हमें क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n. किससे कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है, एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करना है n वैल्यू के साथ. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देयर इज नो n वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, but there is one thing which we have calculated, that is empirical formula. So first of all we have to calculate n value. So how can we calculate the n value? So there is formula to calculate n value, that is n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass. What? Molecular mass divided by empirical formula mass. Then what is the molecular mass? If you move towards the data, then there is a molecular mass given in the question which is 120 gram. And if you calculate the empirical formula mass, empirical formula is C3H8O. then empirical formula C3H8O का जो मास बनेगा, मोलर मास है, that is 60. So here to calculate n we divide molecular mass with empirical formula mass. 120 divided by 60 is equal to 2. Then n value becomes 2. So अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिल गई, 2. अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसके लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए. और हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या है इक्वेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n. Then empirical formula is C3H8O, we multiply with 2 which is n value, and that is equals to C6H16 and O2. that is the molecular formula. लास्ट molecular formula हमें क्या मिला कि C3H8O को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, then answer will come C6H16O2. that is our molecular formula. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि एक अननोन सैंपल दिया गया था जिसकी क्वांटिटी से हमें बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे थे, और उन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल में से हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट की कैलकुलेशन की, जिससे फाइनली हमें 2 कंडीशंस मिल गई. वन कंडीशन इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो इसी अननोन सिंपल का एम्पिरिकल फार्मूला है C3H8O एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H16O2. तो ये थी आज की हमारी कैलकुलेशन एम्पिरिकल फार्मूला के लिए. उम्मीद है आपको लेसन क्लियर हो गया होगा. अब नाउ यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट कैलकुलेशन इन योर ऑन रजिस्टर और फेयर बुक. प्रैक्टिस के लिए आसानी होगी कि आप ये पूरी कैलकुलेशन समझ के कॉपी पे लिखें. देन देयर इज़ अ सिंपल असाइनमेंट विच इज़, जो बुक के एंड में रिव्यू एक्सरसाइज में देर आर 2 प्रॉब्लम्स फॉर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो आपने वो दोनों ही कैलकुलेशन करके यू हैव टू सेंड टू योर कंसर्न टीचर. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.